Faults of the land deadline in Jammu and Kashmir explained, right to life with dignity is a fundamental right. कि जम्मू कश्मीर के पूरे 20 जिलों के अंदर जी. In a detailed interview with News Insider, Mohammad Zulkarnain Chowdhury, advocate from Jammu and Kashmir High Court, explains in detail the faulty lines in the Jammu and Kashmir's government's deadline of 3 months for the removal of encroachments from the state land across the Union Territory of Jammu and Kashmir. Fault lines of the government's order. 1. Welfare state. Advocate Zulkarnain Chowdhury explains to Media News Insider that Jammu and Kashmir are declared welfare states, which basically means the state belongs to the public. If a state is for the public's opinions and desires have to be taken into consideration first and fundamental rights become a priority. 2. Why did the people build on government property? He said, secondly, why did the people buy land and build houses on government property? What was the lack in Jammu and Kashmir that they had to take government property to build their houses? Something happened that made them take government land. The truth is all these people purchased land from authorities who also sold them the land through legal procedures, so why was the government sleeping when all the legal proceedings of land were going on? In the end, who has to take the onus for this deal, the people or the government? The people will only buy land which is shown to them. Who meted out all the legal documents to the people? 3. The Jammu Development Authority failed in providing housing for people. While the government promises to house everyone, the Jammu Development Authority failed in providing housing for people. This taking over their housing is only revealing the failure of the government and the failure of the Jammu and Kashmir housing authorities. JDA failure it is showing. J&K housing negligence also. 4. The right to life with dignity is a fundamental right. It is evident that no one encroached on the land. It was bought from someone who got hold of the land through legal procedures. Now, suddenly, the government cannot throw them out. The right to life with dignity is a fundamental right. You just can't throw them on the roads. Advocate Zulkarnain said that last year in 2021, there was a demolition drive that broke down Kashmiris' homes. The poor people approached the courts. After that, the J&K High Court stayed the procedure because the government did not follow the normal procedure of law, which is to first inform the people and provide provisions before breaking down their homes. 5. Most people are living on these lands for generations or hundreds of years. LB 6432 land rights are still in existence. Also, it has to be taken into account that most people are living on those lands for generations or hundreds of years. 6. The Jammu and Kashmir government over 10 years government regularized 18 colonies. Advocate Zulkarnain pointed out that the government over 10 years regularized 18 colonies. So why cannot the government also regularize the other so-called illegal colonies also? It was in the government's power to do so if it so chooses. 7. The Roshni Act allows the transfer ownership of state land to its occupants for a fee. Advocate Zulkarnain brought out the merits of the Roshni Act. What is Roshni Act? It is a law which had proposed to transfer ownership of state land to its occupants for a fee determined by the government, was popularly known as the Roshni Act, as the proceeds from these transactions were to fund power projects in Jammu and Kashmir. 8. Who is the government building colleges, universities, and industrial complexes for? The Jammu and Kashmir government is proclaiming they will make big projects on the land, colleges, industrial complexes, universities, and hospitals, but the question rises, does not the government in order to retrieve its land not have other state lands? Why is it that the government is taking land only from the people? 9. The bad fate of Jammu and Kashmir is that they do not have a popular government. He said that it is the bad fate of Jammu and Kashmir that they do not have a popular government. Everyone knows it is run by governors' rule. No one is there to listen to their voices, so the government is presently doing whatever is in its mind without thinking of the people. No one is there to listen to their situations, problems, and difficulties. 10. Jammu Smart City, City of Temples is now the city of protests that police are harassing.
The truth is this Jammu they are calling smart city, city of temples, is the same place where the police are chasing our children and sisters and beating them up. At the same time, they are calling it a welfare state. The people are protesting peacefully as is their fundamental right, but the police started attacking them and pushing the girls. How can we advance if this behavior keeps going on? 11. There are two laws in, one for the rich, the other for the poor. At this point, the news anchor at News Insider pointed out that is mainly the poor people's homes getting torn down, to which the advocate replied, "This is why I say there are two laws in Jammu and Kashmir, one for the rich, the other is for the poor. The poor who have no one to speak for them are being harassed by the government while the government bows before the rich and influential." 12. The Jammu and Kashmir government is trying to divert issues in a spin for dictatorship. Advocate Zulkarnain Chaudhary concluded that the Jammu and Kashmir government is trying to divert issues because the people are very troubled here. He said that today, what we used to call Jammu the city of temples has now become the city of protest. Ending on a sober, chilling note, he said, by diverting issues, the people will stop questioning the government, and this is how dictatorship will continue in Jammu and Kashmir. कि जम्मू कश्मीर के पूरे 20 के 20 ज़िलों के अंदर जितनी भी सरकारी ज़मीन या अराजी जो है वो लोगों की पोजेशन में है, उस सारी की सारी ज़मीन को आप रिट्रीव कर लीजिए और उसके बाद सरकार वहाँ पर अपना कब्ज़ा जमाएगी और लोगों से ये ज़मीन हासिल कर लेगी। पहली बात उन्होंने ये कही है कि सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो आपका जो है वो शहर के अंदर रहना चाहिए। कमर्शियल एरियाज़ को आपने पहला फोकस करना है और जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी यानी कि जो लैंड है वो सरकार के कब्ज़े में, जो लोगों के कब्ज़े में है, वहाँ से लेके सरकार इकट्ठा कर लेगी, सरकार अपने कब्ज़े में ले लेगी। और 30 दिन का 3 महीने की डेडलाइन जो है वो फिक्स की है कि 3 महीने के अंदर अंदर इन तमाम 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट से लोगों से ज़मीन हासिल कर ली जाए और उसको अपने कब्ज़े में ले लिया जाए। सेकंड ये कहा है कि जितने भी लोगों के पास जितनी प्रॉपर्टी है जहाँ जहाँ भी है उसको आप कलेक्ट करेंगे और उसमें ये भी इशारा किया है कि हमारे एलजी ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा साहब ने ये कहा है कि गरीबों के ऊपर अत्याचार नहीं किया जाएगा। तो अपने आप में ये स्टेटमेंट जो है वो एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। बिल्कुल कि एलजी साहब ये कह रहे हैं और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ये कह रहे हैं, लेकिन मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया। ये जो बात हमें पता चली है, ये तमाम न्यूज़ के द्वारा हमें पता चली है, जिसको लेकर पब्लिक के अंदर इस वक्त एक रोष है, एक परेशानी का सबब बना हुआ है कि सरकार करना क्या चाहती है। अगर आप एक वेलफेयर स्टेट का हिस्सा हैं, वहाँ अगर आप इस तरीके का काम करना चाहेंगे, लोगों जहाँ लोगों ने मकान बना लिए हैं, मकान का एक टोटली डिफरेंट इशू है। पहली बात तो यह है कि लोगों ने सरकारी ज़मीन के ऊपर मकान क्यों बनाए, लोगों को क्या मजबूरी बनी कि उन्होंने मालकियत ज़मीन के ऊपर रेगुलाइज कॉलोनी के अंदर मकान नहीं बनाए, उन्होंने सरकारी ज़मीन पे अपना घर बनाए। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो हमारा हाउसिंग बोर्ड है जम्मू कश्मीर, वो फेल हो चुका है और पिछले 10 साल से हमें हाउसिंग बोर्ड और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ये बताए कि उन्होंने कितनी हाउसिंग प्रोवाइड करने में जम्मू के लोगों को जो है सहूलत जो है वो फराहम की है, कितनी नई कॉलोनीज यहाँ पर बनाई गई है। हर लोग कहाँ जाएंगे? उसके कारण लोगों को यहाँ पे किसी ने फ्री, तो कहीं ना कहीं जेडीए का फेलियर नजर आ रहा है। देखिए जेडीए का भी फेलियर है, जम्मू कश्मीर की हाउसिंग का भी फेलियर है कि अगर वो लोग, ये जो डिपार्टमेंट हैं जो जम्मू की डेवलपमेंट के लिए बनाए गए, अगर ये लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड करते तो हालत ये ना होती। सेकंड ये है कि किसी ने इंक्रोच तो लैंड की नहीं है, अल्टीमेटली किसी इंक्रोचर के पास थी, उसने सेल आउट की है। तो तब आपके डिपार्टमेंट, आपकी मशीनरी, आपकी अथॉरिटियाँ कहाँ सोई हुई थी? तो अगर उस वक्त सोई हुई थी तो आज किसी ने अगर मकान बना लिया है, चाहे वो 10 मरले में है, 5 मरले में है या 1 कनाल में है, तो आप उनको वकेट नहीं करवा सकते, आप उनको निकाल नहीं सकते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राइट टू लाइफ विद अ डिग्निफाइड लाइफ इज़ अ फंडामेंटल राइट। आप उसको वायलेशन नहीं कर सकते, आप लोगों को बाहर निकाल के एकदम फेंक नहीं सकते। लास्ट ईयर आपने देखा कि एक डेमोलेशन ड्राइव सरकार ने यहाँ वेब मॉल के सामने, जिसको हम बठिंडी मोड़ कहते हैं, यहाँ पे चलाई। बहुत सारी मशीनरी आ गई, सुबह सुबह लोगों को यहाँ दरबदर किया गया, लोगों के घर तोड़ दिए गए। अल्टीमेटली उन लोगों ने कोर्ट को अप्रोच किया और हमारे यहाँ का जो उच्च न्यायालय है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, उसने उस पूरे प्रोसेस को स्टे किया। स्टे क्यों किया
कि आपने ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ जो है उसको फॉलो नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी साहब की ये बात मुझे समझ नहीं आई कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कि यहाँ पर कोई लॉ ऑफ लैंड है कि नहीं है कि आपके आदेश चलेंगे, सब लोगों को निकाल के बाहर फेंक दीजिए सरकारी ज़मीन से और इसको रिट्रीव कर लीजिए। नो डाउट अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन कोई ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है ना। अगर आपने इलीगल ऑक्यूपेंट्स को भी निकालना है तो उसको प्रायर नोटिस देना है, बिल्कुल उसको पहले कहा जाना है कि भाई अगर आपका कोई पक्ष है आप बताइए। देखिए आप एक तराजू से सबको नहीं तोल सकते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब 1954 से पहले के लोग जो पोजेशन में हैं, में भी उनकी मिस्टेक है, अनपढ़ता है, जहालत है, उसके कारण वो किसी अथॉरिटी को अप्रोच नहीं कर पाए। तो LB 6/432 एक गवर्नमेंट ऑर्डर है जिसके द्वारा ये लिखा है कि 1957 और 58 में जिस आदमी का भी अंदराज है, गिरदावरी है और वो सरकारी ज़मीन पर बैठा है, उसको उसके मालकाना हक दिए जाएंगे सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कि वो कंडीशन नंबर 1 यही है कि उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी नाम होना चाहिए। अब किसी आदमी के पास ये कंडीशन वो फुलफिल करता है, तो आज अगर सरकार ये कहेगी कि हम इसको नहीं मानते बट उसके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड है, तो आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। बिकॉज दो जो ऑर्डर जिसके मैं रेफरेंस दे रहा हूँ LB 6/432 स्टिल इन एग्जिस्टेंस। तो उसका बेनिफिट अगर वो आदमी नहीं ले पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको निकाल के घर से बाहर फेंक देते हैं। जिस आदमी ने एक ज़मीन के ऊपर लीगली और इलीगली उसने कब्जा किया, उसके ऊपर अपना मकान बनाया है, तो हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट। होसिंग सबका राइट है, तो अगर आप होसिंग प्रोवाइड नहीं कर पाए तो आप किसी की होसिंग छीन नहीं सकते। आप उस आदमी को बाहर निकाल के नहीं फेंक सकते, आप उसको सड़क पर नहीं ला सकते कि आज आपके पास सरकारी ज़मीन है, आप रेगुलाइज क्यों नहीं करेंगे? क्या ये पहली बार ऐसा प्रोसेस होने जा रहा है? जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 10 सालों से पहले यहाँ पर 18 कॉलोनीज़ को जम्मू कश्मीर की सरकार ने रेगुलाइज किया। तो क्या ये जो कॉलोनीज़ हैं जिनको हम कहते हैं इलीगल कॉलोनीज़, इनको रेगुलाइज नहीं किया जा सकता? उसी पैटर्न पे नहीं किया जा सकता? तो करना चाहिए। तीसरा इशू ये है कि यहाँ पर जो लैंड लोगों के पास थी उसके लिए कानून बना जिसको हम मच पब्लिसाइज्ड लॉ है, जिसको हम रोशनी कानून कहते हैं जी। तो रोशनी कानून के तहत लोगों को ज़मीन अलाट हुई, उन्होंने पैसा दिया और उसके बाद वो अलाटमेंट रही, लोगों का प्रोसेस चलता रहा, वो भी सरकारी ज़मीन के ऊपर था। अल्टीमेटली दैट रोशनी एक्ट वाज चैलेंज बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया, अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर किया, और उसके बाद लोगों ने एक हड़बड़ी जो है वो शहर के अंदर और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखी। अल्टीमेटली लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट को चैलेंज किया गया। मीनवाइल जम्मू कश्मीर की वही सरकार जो आज ये कह रही है कि हम लोगों से सरकारी ज़मीनें छीनेंगे, उसी सरकार ने उस हाई कोर्ट की जजमेंट जो सरकार के फेवर में थी उसको किसने चैलेंज किया? उसको जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, पब्लिक ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हाई कोर्ट की जजमेंट को, लेकिन जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने खुद यू टर्न लिया और कहा नहीं हमारा कानून ठीक है, हमें इस कानून के अंदर ये चीज़ें करनी है, हमने पॉलिसी फ्रेम करनी है, लिहाजा इस पिटीशन को रिव्यू किया जाए। ये हमने नहीं कहा, ये पब्लिक ने नहीं कहा, यह जम्मू कश्मीर की सरकार का स्टैंड है और वो रिव्यू पिटीशन रोशनी कानून की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर दायर की हुई है, जो मैटर अभी भी सब जुडिस है बिफोर द हाई कोर्ट। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया अब आपका मैटर रिव्यू पिटीशन में दायर हो गया हाई कोर्ट में, तो आप पहले हाई कोर्ट से फैसला करवा लीजिए। अगर हाई कोर्ट का फैसला आपके फेवर में नहीं आएगा तो हम आपकी केस को सुनेंगे, अदरवाइज रिव्यू पिटीशन जब तक डिसाइड नहीं होती तब तक, और डायरेक्शन ये दी कि हाई कोर्ट इसकी रिव्यू पिटीशन को डिसाइड करे। तकरीबन कितनी हजार कनाल ज़मीन जो होगी? 20 लाख हजार कनाल ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन लोगों की पोजेशन में। और जिस तरह सरकार कह रही थी जब हम इसको रिट्राइव करेंगे, इसको वापस लेंगे, इसके ऊपर हम जो है वो मैदान बनाएंगे, खेल के मैदान हो या अस्पताल हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या बाकी चीज़ें जो है वो इनके ऊपर हम बनाएंगे। ये कुछ फैसला जो है सरकार इस पे ले रही है कि ये जब हम लोगों से ले लेंगे तो हम उस पर ये सब काम करेंगे। इसके अलावा तो और भी बाकी सब चीज़ें हैं, सरकार तो बाकी तरीके से भी कर सकती है। उन लोगों का क्या होगा फिर जिनने करोड़ों रुपए जो है खर्च करके वो लिया, जिस तरह से आपने अभी भी कहा कि उस लॉ के तहत उन लोगों ने जो ज़मीनें ली हुई हैं उस टाइम के हिसाब से, लेकिन अभी वक्त कुछ और जो है ये क्या? आपने बड़ा ठीक फरमाया कि सरकार चाहती है हम हॉस्पिटल बनाएंगे, जो सरकारी ज़मीन को हम रिट्रीव करेंगे, हम कॉलेजेस बनाएंगे, हम यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उस पर लगाएंगे। आप मुझे बताइए क्या जम्मू कश्मीर की सरकार के पास रिट्रीवल लैंड के अलावा क्या स्टेट लैंड अवेलेबल नहीं है?
क्या सरकार के पास सिर्फ अब कमर्शियल एरिया सिर्फ वही रहे हैं जो लोगों की पोजीशन में हैं? तो किसके लिए सरकार कॉलेज बनाना चाहती है? किसके लिए सरकार यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है? किसके लिए सरकार हॉस्पिटल बनाना चाहती है? किसके लिए इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खड़ा करना चाहती है? किसके लिए? पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए। तो आप सबसे पहले पब्लिक को रहने का अधिकार तो दीजिए। जिन लोगों के वहाँ मकान हैं, जिन लोगों के घर हैं, जो लोग अपना घर बसाएंगे पहले, तो तभी तो आप उन्हीं लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। तो अगर आप उन लोगों के लिए पहले आप उनको लाइवलीहुड तो प्रोवाइड कीजिए, पहले उनको राइट टू रेजिडेंस तो दीजिए, उसके बाद आप उनको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो हम सरकार किस तरफ हमें दिखा रही है, किस तरफ इशारा कर रही है? मैंने आपको इसीलिए कहा कि सरकार के दो मापदंड हैं, बिल्कुल दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक तरफ सरकार के सुप्रीम कोर्ट में वकील ने, जो हमारे तुषार मेहता जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया है और ये ऑन रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट है कि हम जम्मू कश्मीर से रोशनी कानून के मुताबिक जिन लोगों की भी रिव्यू पिटीशन और जिन लोगों को भी लैंड के राइट रोशनी कानून के तहत मिले थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा जब तक रिव्यू पिटीशन डिसाइड नहीं होगी। एक तरफ गवर्नमेंट का स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में ये है, दूसरी तरफ से हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का ये स्टैंड आ रहा है कि हम सबसे जो है वो लैंड रिट्रीव कर लेंगे। तो इन केसेस के बारे में आपका क्या कहना है? ये कहीं ना कहीं एक इलेक्शन के लिए वो ट्रेंड तो नहीं खेला जा रहा है? देखिए, ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की, क्योंकि यहाँ चुनी हुई सरकार कि यहाँ एक कोई पॉपुलर सरकार नहीं है। यहाँ इस वक्त आपको पता है कि यहाँ गवर्नर रूल चल रहा है, किसी की सुनवाई है नहीं, आवाम की कोई सुनवाई नहीं है, और जिसका जो मन चाह रहा है वो किए जा रहा है। आप देख रहे हैं आए दिन किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, किस तरह की सिचुएशंस को जम्मू कश्मीर की आवाम यहाँ फेस कर रही है, क्योंकि सुनवाई कोई नहीं है। एटलीस्ट पॉपुलर सरकार में कोई सुनवाई होती है, कोई सुनता है, लेकिन आज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालात ये हैं कि इस जम्मू, जिसको हम स्मार्ट सिटी कह रहे हैं, जो सिटी ऑफ टेम्पल्स है, वहाँ आज आपने कल ये देखा कि हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को दुड़ा दुड़ा के जम्मू कश्मीर की पुलिस ने मारा। और हम कह रहे हैं हम वेलफेयर स्टेट का हिस्सा हैं। हम सरकार किस तरफ, जो रैबरे खेल के लोग आपने कल देखा कि शहर के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट क्या है? प्रोटेस्ट हर सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन हमारे पुलिस के कर्मचारी उनको, औरतों को धक्के मार रहे हैं। आपने देखा, और ये हालात एक वेलफेयर स्टेट के अंदर अगर होंगे तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। लिहाजा जो ये फैसला है हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का, इसकी हम जो अभी मिनट्स ऑफ मीटिंग तो नहीं आई, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे फैसले आप ना लें। यहाँ की लोगों को कम से कम चेंज से रहने तो दिया जाए। अगर आप कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो जो उनके पास है उसको छीनने का कोई यहाँ पर ये भी देखा गया कि जितनी एनकरेजमेंट हुई अभी तक, या जो डिमोलिशन ड्राइव कहीं कहीं पर चलाई भी गई है, उसमें अक्सर ये देखा गया कि जब वो लोग सामने आए, उन्हें कहा कि हम बड़े ही जो है वो गरीब घरानों से जो ताल्लुक़ रखने वाले थे, कुछ टाइम से जो हम सदियों से यहाँ रह रहे थे, लेकिन अचानक बिना नोटिस के ही जो है ये यहाँ पे आए और मशीनें लाए और तोड़फोड़ कर दी। और ज़्यादा उनमें ये नहीं देखा गया कोई अच्छा अमीर घर से हो या अच्छे वैसे कोई बैकअप वाला इंसान हो, उसको कोई ड्राइव, इसलिए हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर दो तरह के कानून हैं। गरीब के लिए हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर एक कानून है और अमीर के लिए दूसरा कानून है। अभी ये ऑर्डर जो है, अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आपको दिखेगी, सबसे पहले आपको इसमें कुचलता हुआ गरीब नजर आएगा। वो आदमी नजर आएगा जिसका कोई वसीला नहीं है, उस आदमी को तंग किया जाएगा जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। अमीर के सामने ये सरकार झुकती है, अमीर के सामने इन्फ्लुएंशियल आदमी के पास कभी नहीं जाएगी। हमने बार ये सरकार को कहा, और हाई कोर्ट के ये फैसले हैं कि आप इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास 84 कनाल ज़मीन है, आप उसको रिट्रीव कीजिए। वहाँ सरकार खामोश है, वहाँ सरकार कभी नहीं जाएगी। लेकिन जाना कहाँ है कि आपको पैनामा चौक के सामने एक गुज्जर की, एक गरीब आदमी के पास ज़मीन थी, जिसको हाई कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि इसका म्यूटेशन टेस्ट किया जाए। आप उससे लैंड रिट्रीव कर रहे हैं। आपको दिखेगा तो कहीं गुज्जर दिखेगा, आपको कहीं दिखेगा तो उच्च जो ये गरीब आदमी है उसका घर गिराओगे, लेकिन इन्फ्लुएंशियल आदमी के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते। और आने वाले वक्त में अगर सरकार ने ऐसा भी किया तो आपको सिर्फ और सिर्फ पिसता हुआ गरीब आदमी नजर आएगा। अमीर के लिए ना ये कानून है और ना जिस तरह से इसमें कहा गया कि अभी जो खबरें चली, कहा गया कि 3 महीने का वक्फा है सभी लोगों के पास, वो जाकर के अपना रिकॉर्ड जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दें, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी को भी हिदायत दी गई कि आप इन सब लोगों के रिकॉर्ड जो है जमा करके अपने पास लाएं। जो लोग नहीं देगा उसके ऊपर बाद में जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए,
और ये भी है कि उसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो हैं उनको खासकर ये जिम्मेदारी दी गई है। सरकार जो है वो लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लेके जाना चाहती है, क्योंकि लोग यहाँ बड़े परेशान हाल में, मैंने आपको पहले ही जिक्र किया कि सरकार के लिए ही नहीं बल्कि आप देखिए यहाँ आज जम्मू, जिसको हम सिटी ऑफ टेम्पल कहते हैं, वो आज की डेट में सिटी ऑफ प्रोटेस्ट बन चुका है। सरकार लोगों का माइंड डाइवर्ट करना चाहती है, लोगों को काम पे लगाना चाहती है, सो दैट जो इम्पॉर्टेंट इशू हैं, जिन इश्यूज़ के ऊपर बात होनी चाहिए, जिन इश्यूज़ के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, सरकार उन इश्यूज़ से पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, पब्लिक की जो अटेंशन है, उसको डाइवर्ट करना चाहती है और इस काम में लगाना चाहती है कि सरकार के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। और उसी जिस इशू पर हम चर्चा कह रहे हैं, मसावियाँ गायब हैं। कहते हैं मसावी जो है वो अवेलेबल नहीं है। वो रेवेन्यू रिकॉर्ड आप देखें, अभी चवादी जो विलेज है हमारा, वहाँ से रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो सारा गायब हो गया था।